So respiration is basically the oxidation of food molecules to release energy in the form of ATP. एनर्जी चाहिए बॉडी को, एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी के पास? एटीपी से, बिकॉज एटीपी को इस्तेमाल करना होता है। बट एटीपी अगर खत्म हो जाए तो एटीपी कहाँ से आ रहा है? एटीपी को एनर्जी कौन दे रहा है? हमारे फूड मॉलिक्यूल्स दे रहा है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, the other one is anaerobic respiration. This occurs in the in the presence of oxygen. Presence of oxygen. This occurs in the absence of oxygen. ठीक है? हमारे पास when we talk about animal cells में and actually not animal cells, eukaryotic cells. Eukaryotic cells. Eukaryotic cells when we're talking about रेस्पिरेशन के हमारे पास होते हैं 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है वो कंप्लीट हो रही होती है। सो द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, द सेकेंड is the link reaction, the third is your Krebs cycle, and the fourth is oxidative phosphorylation. Now इसका सीक्वेंस याद करने का एक बहुत आसान तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे याद कर सकते हो। सो दिस कुड बी glucose loves killing oxygen. You can memorize the entire sequence this way कि glycolysis पहले होता है, link reaction होता है, फिर Krebs cycle होता है, and then oxidative phosphorylation जिसको as somebody rightfully mentioned we can also call the electron transport chain वाला process. So यहाँ पर हमारे पास electron transport chain आती है। Now हमारे पास जो glycolysis होता है this occurs in the cytoplasm of the cell. This occurs in the matrix of mitochondria. And the last process occurs in the inner membrane of mitochondria, जिसको हम क्रिस्टे भी बुलाते हैं। ठीक है? Any questions so far? Yes. This is the process where chemiosmosis takes place as well. Yes, Ahmed. Yes, yes, मुताहर, हमारे पास जो chemiosmosis होता है वो लास्ट स्टेप होता है ना, जहाँ पे हमारा सारा NADH and FADH is converted through the movement from the stop particle. Oh, अच्छा, sorry. I thought you're answering Ahmed. So yes, chemiosmosis हमारे पास बिल्कुल oxidative phosphorylation में take place करता है। Now, हमारे पास this process, the first one, does not require oxygen. हमारे पास ये जो पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस जो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है वो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करता। सो हमारे पास जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है दिस इज बेसिकली जस्ट द ग्लाइकोलिसिस स्टेप। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया में सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सारे बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होते हैं। सो होलिस्टिकली एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में होती है and aerobic respiration just occurs as a one-step process, which is your glycolysis. ठीक है? Any questions? Sorry, this is your aerobic respiration. So this is basically holistic overview of what is basically happening in the chapter energy and respiration.
एनर्जी की जो सिग्निफिकेंस है वो हमने आज अंडरस्टैंड कर लिया, एनर्जी करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। व्हाई एटीपी इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कंसिडर्ड एज द universal energy currency? It is because it is in the usable form. Energy in ATP is in its readily usable form. This molecule is easy to hydrolyze. अच्छा, it's also a molecule is a very small molecule. ये इतना छोटा molecule होता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है. So ATP is also a small molecule. So because of its low MR and because of its small size, that also favors ATP to be a universal energy currency. हमारे पास easily इसके bonds break हो जाते हैं. क्यों easy breaking of bonds होती है ये हमने understand किया कि already हमारे पास repulsion होती है in the structure of ATP, in the molecule of ATP, which makes the breaking of the phosphate bonds easier. Yes, Mutahar, you can ask your question. How does it being helped? Okay, simple. हमारे पास आपस में if you look at the ATP molecule, can you see that this oxygen and this oxygen both are negatively charged? Now, like charges repel each other. So ये एक phosphate group है and ये दूसरा phosphate group का part है, right? So can I say कि हमारे पास जो ये दो phosphate groups हैं इनके बीच में एक repulsion force होगी because of the like charges repelling each other. So because of that repulsion forces, these bonds are easily to break, and that is why ATP can be easily hydrolyzed. Then ATP can be easily regenerated. अगर ऐसा molecule होता जिसको फिर से बनाना मुश्किल होता, then that would have been a drawback. No. हमारे पास ही I mentioned over here that the enzyme needs to be present. हमारे पास spontaneously hydrolysis का मतलब ये है कि हमारे पास खुद ब खुद बैठे बैठे कोई चीज हाइड्रोलाइज हो जाए. हमारे पास जब तक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगी हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. एंड हमारे पास बेसिकली जो एंजाइम्स होती हैं एंजाइम्स भी जब तक एक्टिवेट नहीं होती, जब तक उनको सिग्नल नहीं मिलता कि दे नीड टू वर्क या उस तरह की कंडीशंस क्रिएट नहीं होती, तब तक एंजाइम्स काम नहीं करती. सो एंजाइम्स नीड अ सिग्नल or appropriate conditions to work. So any molecule which depends on enzyme for its hydrolysis does not hydrolyze spontaneously. ठीक है? So the enzyme being present is the reason why ATP does not spontaneously hydrolyze. जब तक कि ATP is present नहीं होगी, हमारे पास this hydrolysis cannot take place. ठीक है अहमद? We would be ending the syllabus in the first week of April. I've shared the syllabus plan. I aim to complete it in the first week of April. Yes, sure. You can definitely write this कि हमारे पास ATP is easy to hydrolyze. बल्कि मैं यहाँ पर भी ऐड कर देती हूँ. It is easy to hydrolyze, yes, but it does not spontaneously hydrolyze. इसका मतलब ये हुआ, or you can say it that हमारे पास जो ATP है, that is a stable molecule. ठीक है? So the energy currency is the ATP is the energy currency because it is a stable molecule because it does not spontaneously hydrolyze. We will be covering the first three processes of respiration, which are glycolysis, link reaction, and the Krebs cycle. But before we jump into glycolysis, there are a few coenzymes and a few processes which I would be introducing initially. And then we would start off with understanding these three respiration processes. Actually, so for respiration is basically a cellular process. ठीक है, हमारे पास respiration एक metabolic process होता है. And all the processes which are occurring in the cell are mostly enzyme controlled. जिस तरह बाकी प्रोसेसेस के लिए हमें एंजाइम चाहिए होती है, सिमिलरली रेस्पिरेशन में भी बहुत सारी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं. एंड रेस्पिरेशन इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस. ठीक है, हमारे पास कोएंजाइम्स होती हैं. नाउ कोएंजाइम्स, आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स दैट कोएंजाइम को आप कॉपरेशन से समझो. कॉपरेशन का क्या मतलब होता है? साथ मिलकर काम करना.
सो सिमिलरली जो हमारे पास को एंजाइम्स होती हैं, को एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। एंजाइम्स की प्रॉपर या ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए को एंजाइम मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी होता है। यूजुअली दीज कोएंजाइम्स आर विटामिन डेरिवेटिव्स। हम जो अपनी डाइट में विटामिन बी 12 लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, वो सारे जो विटामिन होते हैं ये मिलके हमारी बॉडी में हमारी कोएंजाइम्स बना रहे होते हैं, उनको सस्टेन कर रहे होते हैं। The coenzymes that we are supposed to know or which are essential for the process of respiration are NAD, FAD and coenzyme A. इनके मैंने पूरे नाम भी लिखे हुए हैं, बट आपको आपके सिलेबस में ये पूरे नाम एक्सपेक्टेड नहीं है जानना। Just for the sake of information, additional information, I've mentioned them. NAD is nicotinamide adenine dinucleotide, whereas FAD is flavinadenine dinucleotide. You are not supposed to know these names, so do not exhaust yourself in trying to memorize these names. ठीक है? अच्छा, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इनका क्या रोल होता है? बिकॉज इन तीन के बगैर हमारे पास रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रेस्पिरेशन टू होलिस्टिकली टेक प्लेस, और हमारे पास ऑप्टिमल एटीपी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती अगर हमारे पास ये तीन को एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है? अच्छा, हमारे पास ओके, बिफोर वी प्रोसीड, there are two processes which will occur, which we will be seeing in the processes of respiration, which are dehydrogenation and decarboxylation. These names are very self-explanatory, so I want you guys to give it a shot and tell me what is what is decarboxylation and what is dehydrogenation. What do you guys understand from these two terms? Very good. So dehydrogenation, as most of you said, is the removal of hydrogen, and decarboxylation is basically the removal. Okay, yeah, it's the removal of carbon dioxide from an organic molecule. किसी भी और हर हमारे पास जो organic molecules होते हैं, आप लोग सब organic chemistry से वाकिफ ही होंगे। Organic chemistry में हमारे पास जो major वो होते हैं, क्या कहते हैं, एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट? सो ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वुड हैव कार्बन, ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वुड हैव हाइड्रोजन, ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वुड हैव ऑक्सीजन। तो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है या रिमूव हो रही है, दैट प्रोसेस इज डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, तो हमारे पास दैट प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन। सो हमारे पास जो NAD प्लस एंड FAD हैं, these are basically very important. Yes, Ahmed, absolutely. Dehydrogenation is oxidation because essentially हमारे पास हाइड्रोजनेशन जब हो रही होती है, when there is an addition of hydrogen, हम उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, हम हाइड्रोजनेशन को कहते हैं कि रिडक्शन हो रही है। So hydrogenation is what? It's reduction. When we are adding hydrogen, the addition of hydrogen is reduction. So definitely the opposite would be oxidation. Dehydrogenation is what? Dehydrogenation is the removal of hydrogen. So that would be oxidation. So we can definitely call dehydrogenation oxidation. Okay. Now, हमारे पास होता क्या है? For example, I have an organic molecule जिसकी dehydrogenation हो रही है। जैसे कि कोई भी हो सकता है, हम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक्स कंसिडर कर लेते हैं एंड उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है? हमारे पास मुझे इस मॉलिक्यूल से मैं इसकी डिहाइड्रोजनेशन करना चाहती हूँ। सही है? तो मुझे बेसिकली इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, मुझे H2 रिमूव करना है ना। हमारे पास हमारी बॉडी में एंजाइम्स होती हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, डिहाइड्रोजनेस। Dehydrogenases are those enzymes which are essential for dehydrogenation. मेरी बॉडी में अगर डिहाइड्रोजनेशन होनी है, सेल में अगर डिहाइड्रोजनेशन होनी है, उस प्रोसेस के लिए एंजाइम होना जरूरी है। एंड डिहाइड्रोजनेशन के लिए हमें कौन सी एंजाइम चाहिए होती है, हमें डिहाइड्रोजनेस चाहिए होती है। सही है ना? हमने बात की थी एसेंशियली बिल्कुल स्टार्ट में कि जो हमारे NAD प्लस हैं, FAD हैं, दीज आर को एंजाइम्स। को एंजाइम्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which are required for the functioning of enzymes. एंजाइम्स के साथ मिलके को एंजाइम्स प्रॉपर काम करते हैं।
मुझे अगर डिहाइड्रोजनेशन करवानी है उसके लिए सबसे पहले मुझे एंजाइम्स चाहिए होंगी डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज होगी तभी मेरी सेल के अंदर डिहाइड्रोजनेशन हो सकती है। एंड फॉर डिहाइड्रोजनेजेस टू वर्क आई नीड NAD एंड FAD। यानी कि डिहाइड्रोजनेशन करवाने के लिए NAD प्लस और FAD मौजूद होने चाहिए। द क्वेश्चन इज व्हाई, ये क्यों हो रहा है? बेसिकली अगर हम इस मॉलिक्यूल की डिहाइड्रोजनेशन करें, सो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन होगा क्या, मेरे पास X हो जाएगा एंड X से जो ये हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गई, सेपरेट हो गई। नाउ हमारे पास फर्दर क्या होगा, दैट दिस हाइड्रोजन molecule, this is a hydrogen molecule, it would split into, it would actually become two hydrogen atoms। हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स में मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में चली जाएगी। सो अपने मोलेकुलर फॉर्म से द हाइड्रोजन, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल थी, नाउ हमारे पास टू हाइड्रोजन एटम्स बन गया। यहाँ पर हमारी चेन खत्म नहीं होगी, फर्दर हमारे पास एक प्रोसेस होगा इन विच these two hydrogen atoms would split into टू हाइड्रोजन आयंस, जिनको हम प्रोटॉन्स भी बुला सकते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो मेरे पास एक हाइड्रोजन में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो मेरे पास पीछे एक सेपरेट प्रोटॉन बच जाएगा, एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सो दो हाइड्रोजन एटम्स के पास दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर दो हाइड्रोजन एटम्स फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं, सो वो दो प्रोटॉन्स में और दो इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट होंगे। डू यू गाइज अग्री विद दिस चेन? इस पूरे चेन में किसी को कोई क्वेश्चन या किसी को है कि मैं रिपीट कर दूं फिर से ये प्रोसेस? इज दिस क्लियर टू ऑल what is happening in each step? The first point as in the dehydrogenases वाला, जिसमें हमें NAD and FAD चाहिए, अहमद, सॉरी अमार। ओके, सो बेसिकली मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दिस इज सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। मुझे इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करना है, मुझे H2 रिमूव करनी है, ठीक है? तो हमारे पास बेसिकली आई नीड टू रिमूव दिस हाइड्रोजन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के लिए मुझे एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, दिस इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। कौन सी एंजाइम डिहाइड्रोजनेशन करवाती है? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डिहाइड्रोजनेशन करवाती है। अब कोएंजाइम क्या होती है? कोएंजाइम कोई भी वो मॉलिक्यूल होता है जो कि एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है टू इंश्योर कि एंजाइम प्रॉपरली काम कर सके। एट द स्टार्ट जैसे मैंने कहा था, कोएंजाइम को कॉपरेशन से समझो, टीम वर्क में हमें कॉपरेशन करनी पड़ती है। पूरी टीम अगर आपस में कॉपरेट करेगी तभी फाइनल प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। सिमिलरली सेल्यूलर लेवल पर एंजाइम्स के साथ कोएंजाइम्स मिलकर काम करते हैं, और जब एंजाइम और कोएंजाइम आपस में मिलकर काम करते हैं तो बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सो ऑप्टिमल एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए या प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी के होने के लिए को एंजाइम जरूरी है, ठीक है? डिहाइड्रोजनेशन में हमारे पास एंजाइम्स होती हैं डिहाइड्रोजनेस, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें NAD प्लस और FAD चाहिए होता है। वो क्यों चाहिए होता है? आई वुड एक्सप्लेन इट इन दिस स्टेप। यहां तक अब सबको क्लियर है, रहमा को भी और अमार को भी, एंड टू द रेस्ट ऑफ यू? परफेक्ट। अब क्वेश्चन वहीं पर है हमारे पास कि ये तो चेन हमें समझ आ गई, बट अभी तक इसमें NAD प्लस और FAD का कोई रोल नहीं है। ना तो क्वेश्चन इज, मेरे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो गए हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएंगे, ये ऐसे ही तो सेल में नहीं रह सकते, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल्स। सो ऐसे ही ये सेल में तो नहीं रह सकते, दे हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय समथिंग, राइट? सो होगा क्या कि मेरे पास जो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं जो स्प्लिट हुए हैं इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, these protons and electrons are accepted by NAD plus and FAD. So NAD plus FAD are electron carriers और proton carriers। हमारे पास जो ये प्रोटॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि डिहाइड्रोजनेशन के नतीजे में पैदा हुए हैं, they have to go somewhere, they have to bond with something। they would bond these two hydrogens, sorry, these two hydrogen ions and electrons, they will be accepted by NAD plus and FAD।
सो हमारे पास NAD प्लस जो है वो इन दो हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास FAD भी जो है, FAD कैन ऑल्सो एक्सेप्ट these two protons and electrons to form FADH2। ठीक है। प्लीज माइंड कि हमारे पास रेस्पिरेशन में NADH2 नहीं बनता। अगर आप NADH2 लिख दोगे ना, यू विल नॉट गेट मार्क्स बिकॉज दैट इज इनकरेक्ट। रेस्पिरेशन में हमारे पास NADH प्लस बनता है, और हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जब हम आते हैं तब वहां पे NADH2 बनेगा। रेस्पिरेशन में NADH2 नहीं बनता। टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस मिजरी, कंफ्यूजन में रहोगे अगर लगता है कि हम मिक्सअप कर देंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के NADH और NADH2, सो सिंपली राइट रिड्यूस्ड NAD। ठीक है। रिड्यूस्ड NAD क्यों? अभी जैसे हमने शुरू में बात की थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है तो NAD अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। जब वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी, इट वुड बिकम रिड्यूस्ड। सो यू कैन simply write reduced NAD and the examiner would give you marks. But if you would write NADH2 in respiration वाला process, you will not get your marks, you would lose your marks। ठीक है, तो बस इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि रेस्पिरेशन में NADH प्लस बनता है, नॉट NADH2। सही है। यहाँ पर भी ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ FAD है, and this is our reduced FAD। And obviously, are these equations important? These are important because हमारे पास अभी हम जब आगे चलेंगे we would be seeing कि NAD बन रहा है NADH, FAD बन रहा है FADH2H। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके पास 1 मार्क की क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज NAD प्लस बिकमिंग रिड्यूस्ड NADH। सो यू शुड नो दिस कि क्योंकि हमारे पास हमने डिफाइन ही NAD प्लस और FAD को किस तरह किया है, दैट दे आर प्रोटॉन कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। डिहाइड्रोजनेशन में जो हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो एक्सेप्ट हो रहे हैं NAD प्लस और FAD से। ठीक है। सो दिस पाथवे इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक सो यू ओनली आस्क्ड कि हमारे पास जो NAD प्लस और FAD हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज डिहाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हमारे पास रिड्यूस्ड NAD या रिड्यूस्ड FADH2 नहीं बन रहा। डू यू ऑल एग्री कि डिहाइड्रोजनेशन के एंड में हमारे पास रिड्यूस्ड NAD और रिड्यूस्ड FAD बनना चाहिए। सो वो रिड्यूस्ड NAD और रिड्यूस्ड FAD कैसे बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पूरा पाथवे जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस एंटायर थिंग, this is not something you need to memorize. This is not something that they would ask or they expect you to know. मैं सिर्फ क्लियरली आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास रिड्यूस्ड NADH और रिड्यूस्ड FADH2 कैसे बन रहा है। दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन दिस कि कहाँ से ये प्रोटॉन्स और कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आ रहे हैं। आपके सिलेबस में बस आपको ये पता होना चाहिए कि NAD कैन बी रिड्यूस टू NADH। दिस आई एक्सप्लेन यू फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। ये पाथ पे आपको नहीं मेमोराइज करना, बट ये जो दो इक्वेशंस है they are important. Is this clear to all? Any questions? Perfect. अच्छा, डिकार्बोक्सिलेशन हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि हमारे पास it is removal of carbon dioxide from an organic molecule। इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल X है and this is a, let's say, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। मैं इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर दूंगी, सो डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल की जो कार्बन चेन है, जो इसकी मेन कार्बन चेन है, वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 1 कार्बन। सो मेरे पास अब एक 5 कार्बन एटम बन जाएगा। दिस इज समथिंग यू गाइस वुड बी डूइंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल, जहाँ पे आप कार्बन्स को किस तरह से कम करते हो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बाय द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और ये ज्यादातर एसिड्स के रिएक्शन में आप देख रहे होते हो। अच्छा जी, ये सारी चीजें were an overview of the things that we would be studying in the upcoming steps of respiration.